Assalamu alaikum. I am Asaf Kamal, your English teacher. Hope all of you guys are blessed at home. Today we are going to start present perfect passive voice. Look at the structure: object, then has and have, and been. In passive voice, in perfect tenses, we use been with has and have, then third form of verb, then by, then subject. Look at the example. They have taught the poem. The poem has been taught by them. Again, remember one thing, that we use been in passive voice in perfect tenses, like in perfect, present perfect, past perfect, and future perfect. Okay. Look at the exercise on page number 94. लैंप रोशन नहीं किए जा चुके हैं. क्या छुट्टी का ऐलान नहीं किया जा चुका है? वो हिरासत में नहीं लिया जा चुका है. उसे मुलाजमत से बरतरफ नहीं किया जा चुका है. क्या उसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं? I have translated few sentences for you people from this exercise. First four in a sequence, but the remaining four randomly. Okay. So here comes the translation of the sentences. Look at the first sentence. Lamp रोशन नहीं किए जा चुके हैं. The lamps have not been lighted. क्या छुट्टी का ऐलान नहीं किया जा चुका है? Has the holiday not been announced? वो हिरासत में नहीं लिया जा चुका है. He has not been taken into custody. उसे मुलाजमत से बरतरफ नहीं किया जा चुका है. He has not been dismissed from service. These four sentences I have translated in a sequence for you people, but the remaining four that I have translated for you people, that are randomly. I have picked randomly four sentences and translated for you peoples. बच्चे को सुलाया नहीं जा चुका है. द चाइल्ड हैज़ नॉट बीन पुट टू बेड. कबूतरों के पर नहीं काटे जा चुके हैं. द फीदर्स ऑफ पिजन्स हैव नॉट बीन क्लिप्ड. क्या मशीन को तेल दिया जा चुका है? हैज़ द मशीन बिन ऑयल्ड. क्या तमाम गवाहों को बुलाया जा चुका है? हैव ऑल द विटनेसेस बिन समन्ड. ओके, दीज आर द फ्यू सेंटेंसेस that I have translated for you people. You are supposed to do rest of the sentences by your own. Here we go with the comprehension of unsolved paragraphs on page number 38. About 60 years ago, तकरीबन 60 साल पहले, the question of choosing a profession was not taken up seriously. तो पेशे को इख्तियार करने का जो सवाल था उसे इतना ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया जाता था. A son generally followed the trade of his father. आमतौर पर क्या होता था कि एक बेटा अपने ही बाप की तिजारत उसको ही कंटिन्यू करता था, उसी के कारोबार को ही चलाता था. But nowadays one can take up a trade that one's like. लेकिन आजकल एक शख्स वो काम कर सकता है, कि वो कारोबार कर सकता है जो वो पसंद करता हो. The students who make the right choice of profession are always successful. वो तालिब इल्म जो कि सही पेशे का इंतखाब करते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं. For the right choice of a profession, there should be some definite aim. अब दुरुस्त पेशे के इंतखाब के लिए एक मुकर्रर मकसद भी होना चाहिए. The students who don't have any definite aim suffer a lot in the end, as they have difficulty in finding employment. वो तालिब इल्म जिनका कोई एक मुकर्रर मकसद नहीं होता, वो आखिर पर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हैं जब वो मुलाजमत ढूंढ रहे होते हैं. मुलाजमत ढूंढते वक्त वो तालिब इल्म जिनका कोई एक ख़ास मकसद नहीं होता बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते हैं. In choosing a profession, the teacher and the parents play a very important part. पेशे के इंतखाब में टीचर और वालिदैन अहम किरदार अदा करते हैं. The teacher keeps an eye on his pupils. उस्ताद अपने शागिर्दों पर नज़र रखता है. He studies their habits. और वो उनकी आदत का मुशाहिदा करता है.
सो ही कैन गाइड हिज pupils टू द राइट पाथ ऑफ लाइफ। फिर वो अपने शागिर्दों को ज़िंदगी में सही राह पर रहनुमाई कर सकता है। मीन के ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए वो उन्हें सही तरह से रहनुमाई कर सकता है उनकी। Look at the first question. What were the conditions about the choice of a profession 60 years ago? के 60 साल पहले शोबे के इंतखाब की किस तरह की सूरत हाल थी, कि लोग किस तरह अपने पेशे का इंतखाब करते थे। About 60 years ago, the question of choosing a profession was not taken up seriously। कि मतलब कि 60 साल पहले पेशे के इंतखाब का ये जो सवाल होता था, मीन के कौन सा पेशे का इंतखाब किया जाए, कौन सा कारोबार किया जाए, तो लोग इस बात को सीरियस नहीं लेते थे, संजीदगी से नहीं लेते थे। Why did the people not choose the profession seriously? तो लोग पेशे को संजीदगी से इख्तियार कहीं क्यों नहीं करते थे? Because a son generally followed the trade of his father. That's why they do not take the profession seriously. क्या होता था कि आम तौर पर एक बेटा अपने बाप का ही कारोबार करता था, मीन के जो बाप करता वो ही करता था बेटा भी, तो इसलिए वो इस बात को संजीदगी से नहीं लेते थे। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज। ओके, लुक एट द कम्प्रीहेंशन नंबर 2। मेकिंग पोट्री ऑन द पोएटर्स व्हील इज कॉल्ड थ्रोइंग। पोट्री क्या होती है? मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं उनको पोट्री कहते हैं। ठीक है, पोट्री ऑन पोटर्स व्हील। तो ये क्या होता है, एक व्हील होता है, उसके ऊपर वो रख करके आप मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? थ्रोइंग, मीन के फेंकना कहते हैं। वो मिट्टी को क्या करते हैं? उस पर फेंकते हैं। द थ्रोअर एज अ वेरी स्किलफुल वर्कमैन। और वो जो मिट्टी फेंकने वाला शख्स होता है तो वो बड़ा मीन के स्किलफुल, बड़ा महारत वाला मजदूर होता है। बट देयर इज़ अनदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल्स आउट ऑफ क्ले। लेकिन एक और तरीका कार भी है कि मिट्टी से वो किस तरह वो चीज़ों को क्या करते हैं, उनको शेप देते हैं, उनकी शक्ल में ढालते हैं। मोल्डिंग, तो वो मोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, मोल्ड कर देना, मीन के किसी चीज़ को क्या करते हैं? ढाल देना किसी और चीज़ में, मोल्ड कर देना। अ प्लास्टर मोल्ड इज मेड एंड द क्ले इज प्रेस्ड ऑन इट। क्या करते हैं? वो एक लेप बनाते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? उसको मिट्टी को उसके ऊपर दबा देते हैं। दिस इज़ अ क्विकर एंड लेस डिफिकल्ट वे टू make things like handles, but all the most beautiful pottery is thrown। तो ये काम बड़ा तेज़ी से भी सर अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन और मुश्किल भी इतना ज़्यादा नहीं होता। फिर दूसरी बात इससे क्या बनता है कि हैंडल्स वगैरह, जैसे कि जग का हैंडल हो गया या बाकी जो मिट्टी के बर्तन हम देखते हैं तो एक हैंडल साथ लगा होता है, तो इस तरह के हैंडल्स बनाने के लिए काम आता था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें जिससे बनाई जा सकती है वो फेंकने का वो जो अमल है उससे बनती है। When a piece of pottery is taken off the wheel, जब वो मिट्टी का वो जो बर्तन बन गया वो उसे उतारा जाता है व्हील से, इट इज़ पुट असाइड टू ड्राई, तो उसे इधर साइड पे रख दिया जाता है खुश्क होने के लिए। आफ्टर विच अ डिज़ाइन में बी पेंटेड ऑन इट विद स्पेशल कलर। और फिर उसके बाद क्या होता है कि हम इनके बड़े ख़ास रंगों से उस पर डिज़ाइन बना दिए जाते हैं। डेट विल स्टैंड ग्रेट हीट, और जिसे इनका काफ़ी फिर गर्मी पर रखा जाता है। इट इज़ देन रेडी टू बी फायर्ड, फिर उसे आग में रख देते हैं, इनको उसे आग में जलाया जाता है। दिस इज़ डन इन अ लार्ज ओवन और किल, तो इसे बड़ी एक मीन के ओवन या एक भट्टी टाइप होती है। ठीक है, मीन को जैसे आपने कभी देखा हो या आप लोगों का एक्सपीरियंस बहुत कम ही हुआ होगा, तो मीन के जहाँ पर जैसे ब्रिक्स, जहाँ पर मीन के ईंटें वगैरह बनती थी, इस टाइप की वो भी होती है। तो इसमें रखा जाता है, इसको काफ़ी ज़्यादा हीट दी जाती है, आग दी जाती है इसको, तो ये पक जाता है। मीन के इसका कलर जो होता है और ये चीज़ भी ये पुख्ता हो जाती है। ठीक है, द पीसेस ऑफ पोट्री आर प्लेस्ड इन अर्दनवेयर टब्स कॉल्ड सागर्स। तो फिर उन्हें क्या करते हैं कि इनके एक सागर्स एक इनके एक जगह सी बनी होती है मिट्टी की। ठीक है, उसके अंदर रख देते हैं, सो डैट द फ्लेम्स कैन नॉट टच द पोट्स, ताकि
अब वो जो शोले हैं इन पोर्ट्स को, इन बनी हुई चीज़ों को, ठीक है, मीन के वो छू ना सकें। लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट इज थ्रोइंग? थ्रोइंग क्या कहलाता है, क्या किस चीज़ को कहते हैं? मेकिंग पोएट्री ऑन द पोएटर्स व्हील, ऑन पोएटर्स व्हील इज कॉल्ड थ्रोइंग। सिंपल सा जवाब है कि मट्टी के बर्तन को, ठीक है, पोटर व्हील्स पर, मीन के वो जो मिट्टी का एक व्हील बनाया हो तो उस पर बनाने के अमल को थ्रोइंग कहते हैं, ठीक है। सो यू आर सपोज टू डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बाय योर ओन। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।